السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، یہ جو تھمبنیل میں سوال ہے کہ کیا اہل حق باطل سے اتحاد کر سکتے ہیں، یہ سوال آپ سبھی حضرات سے ہیں جو حضرات دیوبندیوں کو اور ثقلینیوں کو اور اہل حدیثوں کو حق پہ سمجھتے ہیں، ان سبھی سے میرا سوال ہے۔ میں 3 واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ان کی کالی کرتوت اور ان کا مکروہ چہرہ۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ 2015-16 میں مہاراشٹر سانگلی ضلع میں والوا تعلق حیدر مسجد میں امامت کر رہا تھا۔ 2015-16 کی بات ہے، اور 2015 میں 2-3 مہینہ کے بعد امامت شروع کرتے ہی 2-3 مہینہ کے بعد شیعہ اور دیوبندی دونوں ایک ہو گئے۔ دونوں تھانے میں جا کر میرے خلاف FIR کیے۔ والوا تھانے میں بھی جا کے تحقیق کر سکتے ہیں، جن کو بھی شک ہو جا کر تحقیق کرے۔ سانگلی ضلع والوا تعلق والوا شہر کی حیدر مسجد، وہاں جا کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ اگر دیوبندی شیعہ کو کافر کہتے ہیں، شیعوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرے خلاف شیعوں کے ساتھ مل کر تھانے میں FIR کرنے کی اور شیعوں کے ساتھ ایک جٹ ہو کر پولیس کے سامنے بھی شیعہ اور دیوبندی ایک ساتھ کھڑے تھے، شیعہ مولوی بھی تھے، شیعہ لوگ بھی تھے اور دیوبندی لوگ بھی تھے۔ اور دوسرا واقعہ بتا رہا ہوں، سولاپور ضلع کرملا شہر کی، وہاں سنی مسجد نہیں تھی، تو 2017 میں وہاں پہنچا اور 2017 میں جا کر وہاں پر میں نے پہلے مارکیٹ میں ایک بڑا گوڈاؤن خالی کرا کے اس گوڈاؤن میں جمعہ کی نماز اور پنجہ گنا نماز چالو کیا، ٹیمپورری مسجد بنا کر وہاں نماز چالو کیا۔ تو وہاں پر 2-3 مہینہ میں الحمدللہ 400 لوگ تقریباً میرے پیچھے نماز پڑھ کے آنے لگے۔ دیوبندیوں کی مسجد خالی ہونے لگی۔ اس کو دیکھ کر ہولی کے دن ایک طرف تو دیوبندی لوگ ہولی کے دن گنیش کے اوپر پھول برسائے، اسی شہر میں اسی دن ہولی کے دن دیوبندیوں نے مسجد کے اوپر سے گنیش کے اوپر پھول برسائے۔ اور دوسرا واقعہ اسی دن رات میں یہ ہوا کہ 50-60 لوگوں کو بجرنگ دل RSS والوں کو دارو پلا کر شراب پلا کر مجھ پر چھوڑے گئے۔ رات میں آ کر مسجد میں توڑ پھوڑ کیا اور مجھ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ قرآن شریف بھی بکھارے تھے، قرآن شریف بھی ان لوگوں نے پٹک کے پھینکے تھے۔ یہ واقعہ آپ سولاپور ضلع کرملا شہر میں 2017 میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ آپ جا کر تحقیق کر سکتے ہیں، اور میرے ساتھ الحمدللہ وہاں کے پورے شہر کے لوگ گواہی دیں گے، جتنے لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہم مسجد میں 10-15 لوگ کھڑے تھے، ان کے سامنے آ کر وہ 50-60 لوگ شراب پیے ہوئے، پہلے تو دیوبندی لوگ آئے سوال پوچھنے کے لیے، اور ان کے پیچھے کھڑے تھے 50-60 دارو شراب پینے والے، وہ سب مل کر ہم پر حملہ کیے تھے۔ اور تیسرا واقعہ یہ بتا رہا ہوں کہ آندھرا پردیش کے مدن پلی سے 50 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے کلچرلا، وہاں پر اسی سال 2-3 مہینہ پہلے یہ ثقلینی لوگوں نے بجرنگ دل کو لے کر اپنے پیر کی کالی کرتوت کو مٹانے کے لیے، جو ان کے پیر کا میں بھنڈا پھوڑ رہا ہوں، ثقلین میاں کی جو مکاری ہے، دغا بازی ہے، وہ میں YouTube کے ذریعے سے بھنڈا پھوڑ رہا ہوں، تو اپنے پیر کی کالی کرتوت کو مٹانے کے لیے ان خبیثوں نے بجرنگ دل والوں کو اور وہاں کے اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو، سب کو ایک جٹ کر کے تقریباً 400 لوگوں کو رات کے 10 بجے مسجد کے سامنے لے کر آئے تھے۔ گاؤں کے لوگ سب ایک ساتھ جڑے، اور نئے لوگ تھے، گاؤں کے لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے، تو گاؤں کے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال حملہ تو نہیں کر سکا، لیکن میرا ویڈیو ڈیلیٹ کرانے کے لیے بجرنگ دل والوں نے دھمکی دیا کہ اگر تم نے ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کیا تو یہاں پر ہندو مسلم کا دنگا کرائیں گے۔ ثقلینیوں نے بجرنگ دل والوں کو ہندو مسلم دنگا کرانے کے لیے لے کر آئے تھے۔ آپ ہی انصاف کرو، یہ ثقلینی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس لیے یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ جتنے ثقلینی ہے جلد سے جلد ثقلین میاں کے مریدی کو توڑے، اور ورنہ یہ آپ کو کافروں سے ملا دیں گے۔ یہ بجرنگ دل والوں کو لے کے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں ایڈریس بھی بتا رہا ہوں، جا کر تحقیق کر سکتے ہیں۔ آج بھی روزانہ دھمکیاں دے رہے بجرنگ دل والے اور ثقلینی مل کر۔ اس وجہ سے میرے بھائی، ان کا ساتھ چھوڑ دو، یہ لوگ مسلمان نہیں ہے، یہ لوگ سنی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ کافروں کے ساتھ، اسی طرح جتنے باطل فرقے اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، سب ایک دوسرے سے کافروں سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور کیسے میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آخر تک آڈیو سنیں، سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ ہلو، ہاں جناب۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بھی آپ کا نمبر ہے؟
हाँ जी, आपने जो जो वीडियो भेजा है उससे आपको क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है आपको, और क्या। अच्छा, इसमें कोई भी वीडियो में चंदा मांगते हुए दिखाया गया? नहीं नहीं। और उसमें कोई भी देवबंदी जो सामने जो है वो देवबंदी है? वो और असगर बेगम है क्या वो? हाँ, वो जितनी वीडियो है वो सारे वीडियो की हकीकत बताता हूँ। पहले वीडियो में एक बंदा जो है ऑडियो में मेरे खिलाफ बोल रहा है कि जलालुद्दीन की हकीकत ये है, कोई मदरसा नहीं है, ये सिर्फ मदरसे के नाम पे चंदा करता है। उस शख्स का नाम है इकबाल गयावी। हाँ, वो शख्स के साथ सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप में किसी झगड़े की वजह से उसने मेरे खिलाफ व्हाट्सएप पे एक ऑडियो छोड़ा, 1.5 मिनट का, तकरीबन 1 मिनट 36 सेकंड का ऑडियो छोड़ा था। उस ऑडियो को देवबंदियों ने बहुत ज्यादा फेमस किया और मेरे खिलाफ बोल रहा है, ना मेरे खिलाफ कोई सबूत है। और उस वीडियो में वो बोल रहा है कि जलालुद्दीन का कोई मदरसा नहीं है, चंदा मांग के जिंदगी गुजारा कर रहा है, ये बोल रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा तक ये सकलैनी शैतान लोग जाकर वहां हंगामा करके, वहां के हमारे कमेटी को परेशान करके, हमारे असातिज़ा को परेशान करके आ चुके हैं। तो साबित हुआ कि पहले वीडियो में जो बताया जा रहा है कि जलालुद्दीन का कोई मदरसा नहीं है, तो जलालुद्दीन के मदरसे में जाके तुम लोगों ने हंगामा करके आए हो। हाँ, वो मदरसा है महाराष्ट्र में, सांगली जिले में, इस्लामपुर शहर, जिला सांगली। बस स्टैंड के पीछे औलिया मस्जिद है, औलिया मस्जिद से लगे हुए हमारा मदरसा है दारुल उलूम बरकात रजा। तकरीबन अभी भी 35 बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसी साल दस्तारबंदी के जलसे में और बरेली शरीफ के दस्तारबंदी के जलसे में बरेली शरीफ के मुफ्ती अफजाल साहब तशरीफ लाए थे। हमारा मदरसा है या नहीं है, वहां पर जलालुद्दीन की खिदमत क्या है, खुद मुफ्ती अफजाल साहब गवाह है, समझे जी। मुफ्ती अफजाल साहब गवाह है, पूछ लीजिए, बरेली शरीफ में ही है। और जलालुद्दीन का कोई मदरसा नहीं है, सिर्फ चंदा कर करके अगर खा रहा है तो मदरसा वाले चुप बैठे हैं क्या? मदरसा के कमेटी वालों को हर साल मैं पूरा हिसाब देता हूँ, मेरे पास जितने रसीद होती है, रसीद का 1-1 रुपया गिन के हिसाब देता हूँ और अपनी मजदूरी मैं लेता हूँ। और मैं अपनी मजदूरी आने जाने का किराया कट करके मेरा जो भी खर्चा निकाल कर महीना तनख्वाह होता है, थोड़ा बहुत तनख्वाह जो कमेटी वाले फिक्स करते हैं, वो तनख्वाह मैं लेता हूँ। मैं कमीशन नहीं लेता और मैं 1 रुपया का हिसाब में गड़बड़ी नहीं करता। 1-1 रुपया का हिसाब मेरे पास रसीद बुक में है। और नहीं माशाल्लाह, खैर मैं सुन रहा हूँ अकानियत वगैरह सब आपकी, मैं सुनता हूँ। हाँ, तो एक बात हो जाता है बातों से ही। हाँ, एक बात आपको, एक जो 4-5 वीडियो सकलैनी शैतानों ने फेमस करना शुरू किया, ये हर वीडियो देवबंदियों ने बनाया है। हाँ, अच्छा। एक सब वीडियो देवबंदियों ने बनाया। व्हाट्सएप पे ऑडियो था, एक शैतान जो इकबाल गयावी, उसने हमारे खिलाफ जब ऑडियो डाला तो हमने इकबाल गयावी को फोन करके बोला कि तुम माफी मांगो। तो इकबाल गयावी माफी नहीं मांगा। तो इकबाल गयावी के एड्रेस पे हम गए, हमारे उलमा की टीम गए, जाकर वहाँ के कमेटी से नालिश किए, शिकायत किए। फिर वहाँ वो मजबूरन माफी मांगा, उसकी माफी नामा भी है। जिसने मेरे खिलाफ बोल रहा है कि जलालुद्दीन चंदा करके खा रहा है, तो उसने माफी मांगा। तो जो खुद माफी मांगे उससे खुद भी जाके पूछ सकते हो, उसका नंबर वायरल करो। जिसने मेरे खिलाफ बकवास किया उससे सबूत मांगो कि जलालुद्दीन अगर झूठ बोला उसका सबूत तुम्हारे पास क्या सबूत है, बताओ। तो वो सबूत, बिना सबूत के कोई भी किसी पर इल्जाम लगाए तो वो इल्जाम को सच मानने वाला भी एक नंबर का बेवकूफ है। यह हर सकलैनी नंबर 1 के बेवकूफ है, यह गोबर भक्त जैसे भक्त है। इस वजह से ये लोग हर झूठ को सच मान रहा है। और ये देवबंदियों से मिले हुए हैं, देवबंदियों से कलेक्ट किया है मेरे खिलाफ वीडियो। मेरे खिलाफ जितने वीडियो है सब देवबंदियों से कलेक्ट किए। एक बदमाश मौलवी है गुजरात में, नवसारी जिले में एक गांव है, गांव का नाम है गंडेरी। उस गांव में वो बैठकर जो है आला हजरत के खिलाफ भोगता था। उसको हमने जाके बेनकाब किया। उस गांव में जब गया तो हमारे साथ उसने हंगामा किया। तो उस हंगामा की वीडियो है। एक मस्जिद में गया, उस गांव की मस्जिद में, मस्जिद सुन्नियों की है, तबलीग जमात वाले बैठकर वहां पर तबलीग जमात वाले बैठकर मीटिंग कर रहे थे, गलत हरकतें कर रहे थे, तबलीग जमात वाले सो रहे थे और उनके वीडियो मैं बनाया था।
तो मोबाइल में जो मैं मोबाइल टच करके जो मैं वीडियो निकाल रहा हूँ वो मुझे घेरे हुए थे देवबंदी लोग, और देवबंदियों का वीडियो, उस मस्जिद का वीडियो डिलीट कर रहे थे, क्योंकि देवबंदियों की गलत हरकतों का मैं वीडियो बना रहा था। अच्छा अच्छा। देवबंदी गंदे हरकत कर रहे थे मस्जिद में, उसका वीडियो मैं बनाया तो किसी देवबंदी ने देख लिया तो सारे देवबंदी घेर कर मेरे मोबाइल से वीडियो डिलीट कर रहा था। अच्छा देवबंदी लोग वीडियो डिलीट कर रहे थे। अच्छा अगर अच्छा। मैं चंदा करता वहां तो चंदे का पैसा दिखाई देता, चंदा मांगते हुए दिखाई देता, और सामने वाले जो घेरे हुए थे मुझे, वो लोग मुझे वीडियो डिलीट करने की बात नहीं करते बल्कि पैसे की बात, चंदे की बात करते। सही बात है। वहां तो चंदे की बात नहीं हो रही पैसा थी, किधर, वीडियो डिलीट की बात हो रही है। वहां जो वीडियो डिलीट करने की बात हो रही है, जिस तरह सकलैनी हरामखोर अपने पीर की काली करतूत को छुपाने के लिए वीडियो डिलीट कराता है, गुंडों को लेके आता है, बजरंग दल को लेके आता है। इन शैतानों को बजरंग दल वालों से रिश्ता है। आप बताओ, जो वली कहता है सकलैन मियाँ को, वो वली नहीं है, वली अल्लाह नहीं, वली उस शैतान है, शैतान के दोस्त है। इसलिए इनको बजरंग दल वालों से ताल्लुकात है, आला हजरत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनको हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से ताल्लुक नहीं है, इनको सहाबा इकराम से ताल्लुक नहीं है, इनको ताल्लुक है बजरंग दल आरएसएस से है। अपना पीर की वीडियो डिलीट करने के लिए ये महाराष्ट्र से, बंबई से 1200 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश तिरुपति के पास, वहां जाकर जहां मैं इमामत कर रहा था, वहां मेरा वीडियो डिलीट करने के लिए इन शैतानों ने आरएसएस और बजरंग दल वालों को लेकर आए थे। तो ये दोनों का सेम रिश्ता है। देवबंदी लोग भी अपनी काली करतूत को छुपाने के लिए वीडियो डिलीट करने पर दबाव डालता है, और सकलैनी शैतान लोग भी वीडियो डिलीट करने पर दबाव डालता है। समझे मेरे भाई? जी जी जी। हमारे सुन्नी भाइयों को मैंने कह कहा दीजिए कि कोई भी गलत फहमी का शिकार न हो। बरेली शरीफ के अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अफजाल साहब हमारे मदरसे की गवाही देंगे। अच्छा चलो, उसमें जो है क्या ना, मैंने वीडियो इसलिए भेज दी कि आप देख लो, हो सकता है आप तक ना पहुंची हो, और उसको जो है वो तो बहुत क्योंकि दिन से वायरल चल हो रहा है, गया। वो पहले देवबंदियों के पास था, क्योंकि ये देवबंदियों के नाजायज औलाद है। ये सकलैनी है ना, देवबंदियों के नाजायज औलाद है। ये सब वीडियो अपने बाप से लिया है। और असगर देवबंदी आला हजरत पर रात दिन भोगता है, उसके पास गया तो उसकी बोलती बंद हो गई, और वो बात करने के बजाय मेरे मोबाइल छीन रहा था। जो वीडियो उसका, में दिख रहा है वो असगरी बेगम है वो? हाँ असगरी बेगम है, वो असगरी बेगम, वो बेगम अच्छा, बनकर बैठी उसमें बैठी नूर हुई हसन है। भाई का भी नंबर लिखा हुआ है, हाँ, नाम लिखा हुआ है। एक वीडियो में नूर हसन भाई का भी नाम लिखा हुआ है। वो सब नाम तो एडिट करके, कोई भी ऑडियो को वीडियो बनाने के लिए कॉइन तो मास्टर उसमें में जाकर नाम लिखो, किसी का भी नाम किसी वीडियो में सेट तो कर उसमें दो, नूर नाम हसन भाई लगा का दो। लेना देना थोड़ी है कोई। हाँ, वो सबूत है क्या? मैं सकलैनी शैतानों को कहता हूँ, अगर एक बाप की औलाद हो, 1 रुपया का चंदा का नाजायज कोई इस्तेमाल, या फिर गलत तरीका से चंदा लेते हुए, या गलत इस्तेमाल करते हुए, या फिर कोई फ्रॉड करते हुए 1 रुपया का दिखा दो सकलैनी शैतानों। तुम्हारे पीर ने जिंदगी भर करोड़ों लोगों का पैसा खाया है, एक मदरसा नहीं बनाया, एक आलिम नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलालुद्दीन एक छोटा मौलवी है, मांग मांग के मदरसा चला के अब तक 15 बच्चों को हमने हाफिज बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। बताइए, हमारे बड़े उलमा तो बहुत बड़ी बात है। मैं खुद हमारे मदरसा का, हमने 15 बच्चों को हमने हाफिज बनाया। सही। तो आवाम के पैसा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम 15 नहीं, एक हाफिज भी बनाते हैं लाखों रुपया खर्चा करके, तो भी आवाम का पैसा का हक अदा कर दिया हमने। एक नहीं, 15 बच्चों को हाफिज बना। अगर लॉकडाउन नहीं होते तो 25-30 बच्चों को हम हाफिज बना सकते थे। 3 साल तो मदरसा बंद रहा, मदरसा का पढ़ाई खराब हुआ 2 साल। सही। जी, तो चलो, मैं हम समझ रहा था ये नई है, अगर पुरानी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत साफ पुरानी है, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी वीडियो है। वो मंजर आम पर ला रहा है सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए। वो बदनाम थोड़ी हो रहे थे, मैं बदनाम नहीं होऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर बात अल्हम्दुलिल्लाह सबूत के साथ मैं बात करता हूँ, सबूत के साथ बात करता हूँ। अगर कोई बंदा, एक तो मैं देवबंदियों के चंदे पर थूकता हूँ। हाँ, कोई सुन्नी भाई है, सुन्नी भाई से जो मुझ पर भरोसा करते हैं उन्हीं से मांगता हूँ, और बेशक अपना देने वाले बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे
आला हजरत के मोहब्बत करने वाले, गरीब नवाज के मोहब्बत करने वाले, गौसे पाक के मोहब्बत करने, साहबा इकराम के मोहब्बत करने वाले हमें देते हैं, हमें खुशी है। और जो भी हमको चंदा देते हैं अल्लाह ताला उनके माल में बरकत अता फरमाए, और हासिदीन को भी जो गलत फहमी का शिकार है उनको भी अल्लाह ताला समझ दे, हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और सकलैनी शैतानों को अल्लाह गारत करे। और इसी तरह उलमा इकराम को बदनाम करने का इनका हमेशा दस्तूर रहा है, और उलमा इकराम को बदनाम करते करते इनके फिरके में, सकलैनी फिरके में एक भी आलिम नहीं बचा, क्योंकि जो उलमा से मोहब्बत करेगा उन्हीं के पास अल्लाह आलिम पैदा करेगा उनके नस्ल में, और जो उलमा से जलेगा उनके नस्ल में क्या 7 नस्लों में भी कोई आलिम पैदा नहीं होगा। सकलैनी शैतानों, वीडियो की आप ये सब वीडियो टेंशन में लीजिए, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, कोई दिक्कत नहीं है, जी। करने दीजिए। अच्छा हजरत, ये जो है ना, थोड़ी सी अगर रिकॉर्डिंग हो रही तो यहाँ पर रोक कर एक दूसरी गुफ्तगू करना चाहूंगा। मैं आपको और आज कर दूं कि ताज शरिया रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कट्टर सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ जी। लेकिन कुछ और मदारिस की लाइन का भी हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ चीजें हजरत मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने अपना क्लियर कर दिया मैं क्या हूँ, फिर भी मेरे जहन में जो है मैं जानना चाहता हूँ, ये जो सकलैन मियाँ हैं या सकलैनी हैं, हाँ, इन पर क्या कुफ्र का फतवा है? देखो जब तक कुफर का फतवा तो एहतियात करना चाहिए, लेकिन गुमराह जरूर है। और हसद करने मुझे वाले, लग रहा है कि कुफ्र की तरह शिद्दत से सख्ती करना मुझ क्या सही हो रहा है क्या? देखो कुफर के साथ भी शिद्दत करना है, कुफर के साथ भी, कुफर वालों के खिलाफ भी शिद्दत करना है, फासिकीन। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह फासिक के बारे में, अल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, इसी तरह की आयतें, फासिकों को अल्लाह हिदायत नहीं देता, फासिकों के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। इस तरह की जो कुरान शरीफ में वईदें हैं फासिक के ऊपर भी है, काफिरों के लिए भी है, और खुदा का हर दुश्मन के बारे में है। और जो वली से जलता है वो बिल्कुल अल्लाह का बागी है, अल्लाह का दुश्मन है। किसी वली से अगर हसद करता है तो वह अल्लाह का बागी है। और सकलैन तो कोई वली है भी नहीं, गारंटी से 101% गारंटी से कहता हूँ, जो आलिमों से जलता है, उलमा से जलता है, उलमा से लोगों को दूर करता है, वो फासिक है। सकलैन मियाँ नहीं है, वो मैं जानता हूँ उनके बारे में, उनकी जिंदगी और उनके बाद का, वो मेरे मौकिफ में नहीं है। मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने तारुफ पहले कराया अपना। हाँ, तो बात ये बोल रहा हूँ, सुनिए, सख्ती, हाँ जी, मैं सब बातें बता रहा हूँ। सकलैन को सख्ती इसलिए करना है क्योंकि भोले भाले आवाम सकलैन को सुन्नी समझ रहा है, और सुन्नी समझकर जुड़ रहा है, आला हजरत से दूर हो रहा है। जब आला हजरत से ही नहीं बल्कि आला हजरत के जितने आला हजरत से ताल्लुक रखने वाले उलमा है, उन उलमा से भी दूर कर रहा है। अब आला हजरत के चाहने वाले उलमा से अगर आवाम दूर होंगे तो आवाम को तो आलिम की हर पल जरूरत है, हर कदम कदम पर आलिम की जरूरत है कि नहीं? ऐसे सकलैनी बहुत से ऐसे भी हैं बेचारे जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। जिन्हें पता नहीं है उनको नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं है। अब जो हैं वो चंद हैं, और वो उनके चमचे हैं, खादिम हैं, और वो पूरे डॉन दबंग कुछ भी कह लीजिए, किन्हीं अल्फाजों से कर दीजिए। लेकिन मेरा सिर्फ मसला ये कि इस तरह की सख्ती रखना जो कुफ्र वालों के साथ हो, दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए वाली सख्ती। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बोलेंगे तो उसके खिलाफ हम सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन सबके सब सकलैनी मुझे लगता है नहीं है इस टाइप के। वो देखो सकलैन मियाँ और उनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनका जो मौक़िफ़ है, 10-20-50 हैं बस गिने चुने। मेरी पूरी बात सुनिए, आपको समझ में आएगा। बात खुलासा, एक एक बात का खुलासा करता हूँ। पहली बात ये है कि ये सख्ती ना करे और नरमी करे, आपका ये कहना है। अगर ऐसा नरमी किया जाए तो पहले से सकलैनी अवाम क्यों बने? हमारे उलमा सख्ती ना करने की वजह से बने। अगर हमारे उलमा 10 साल पहले सख्ती किए होते तो एक भी सकलैनी नजर नहीं आता। हमारे उलमा ने नरमी किया, इनको सुन्नी माना, इस वजह से आवाम सुन्नी समझकर इनसे जुड़े। आप खुद कह रहे भोले भाले आवाम है जिनको कुछ मालूम नहीं, तो उनकी तो गलती नहीं है, उन्हें सुन्नी समझ के जुड़े। तो जब हमें पता चला कि ये सुन्नी नहीं है, ये हर रिवाज
شیعوں کی رواج دے رہے ہیں، ان کے تعلقات وہابیوں سے ہیں، شیعوں سے ہیں، سلی کلیوں سے ہیں، طاہر القادری سے ہیں، مداریوں سے ہیں، ہر باطل فرقے سے ان کا تعلق ہے اور اہل حق سے ان کی دشمنی ہے۔ جب آپ کو کھل کر ایک دم صاف ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو یہاں کے ہر علماء کو بولنا فرض ہے، ہر علماء کے لیے ثقلینی کے خلاف بولنا فرض عین ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جب فتنہ ظاہر ہو اور عالم خاموش رہے تو اس عالم کی فرض بھی قبول نہیں ہوگا اور نفل بھی قبول نہیں ہوگا۔ فلا يقبل لهم صرفا ولا عدلا، حدیث میں موجود ہے فتنے کے زمانے میں اگر عالم خاموش رہا اس عالم کی فرض بھی قبول نہیں ہوگا، واجب اور نفل بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ جو عوام کے درمیان جو خلفشار ہے، عوام کے درمیان جو انتشار ہے، اس کی وجہ یہاں کے علماء، اس علاقے کے علماء ثقلینی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ اور میں جو بول رہا تھا کہ عالموں سے دور کر رہا ہے، ہر عالم کے خلاف ایک ممتاز ثقلینی نام کا شخص ہے، مولوی کبھی نہیں حق بتائے گا، اس طرح کی بول رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مولوی کبھی حق نہیں بتائے گا، ایسا بول کر کون سے مولوی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا بتائیے؟ ہر عالم، وہ تو جاہلوں کا تو کیا کہنا، جاہل تو ہے آپ ہی، بتاؤ سب پہلے کا ایسے کوئی جاہل کو یہ لیڈر جاہل، یہ تو جاہل ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہر ثقلینی جاہل ہے، لیکن ثقلینیوں کے لیڈ کر رہا ہے جو لیڈر ہے وہی جاہل ہے، تو وہ عام تو جاہل ثقلینی ہے نا۔ کو یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ہر مولویوں سے نفرت دلائے گا، اور خاص کر کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو یہ لوگ سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف کو اگر یہ اپنی طرف لے جانا ہے، سنی بن کر یہ سنیوں کو اپنی طرف لینا ہے، تو ٹارگٹ آسان طریقہ اعلیٰ حضرت ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے نفرت دلاتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہو گئی اور ان کے علماء تو ہے نہیں ان کے پاس کوئی، جب ان کے پاس علماء نہیں ہے، علوما ہیں ان میں، علوما کوئی نہیں، علوما ہیں جتنے ہیں وہ مجھے معلوم ہے، بہت ان اچھی کے طرح جانتا علماء ہوں۔ نہیں ہے تو عوام کو تو علماء کی ضرورت پڑے گی نا۔ اب یہ ترجمہ کے قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اگر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو کس کا پڑھیں گے؟ تھانوی کا پڑھیں گے، کسی نہ کسی کا تو پڑھیں گے نا۔ آپ کتابیں پڑھیں گے، جب اعلیٰ حضرت کا نہیں پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت والوں کی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو کس کی کتاب پڑھیں گے؟ اچھا، مداریوں کو ہم نے رد کر کے الگ کر دیا، ثقلینیوں کو رد کر کے الگ کر دیا، دعوت اسلامی الگ، سنی میں موقف میرا وہی ہے جو تاج شریعہ کا ہے، ٹھیک ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہاں اور سنی دعوت اسلامی کو الگ کر دیا، دعوت اسلامی کو الگ کر دیا، تو بچ کون رہا ہے؟ اور پہلے کا جو میٹر تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب سے 10 سال یا 20 سال پہلے لے لو، جب بھی کوئی بھی دقت آتی تھی بالخصوص بریلی شریف میں، تو جو آج کے دور کے ثقلینی فرقہ بنتا جا رہا ہے، یہ ہاں لوگ شہر کے لوگ سب سے آگے کسی بھی ہاں دھرنا پردرشن میں گولی کھانے کو تیار رہتے تھے، ہر ہاں جگہ جب ایک تھے۔ جی جب سے یہ تبنگڑا پیدا ہوا ہے جس جاہلوں کی وجہ سے، اب خرفشار یہ ہو گیا کہ سیاسی لیول پہ ہر اعتبار سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ یہی تو دشمنوں کی یہی چال ہے، ان خبیثوں کے پاس جب کوئی عالم نہیں تو ہے، اتنا سختی سے رد کر کے حل نکلے گا، یہ رد صحیح کر لگ کے رہا ہے؟ سختی سے ہی رد کر کے حل نکلے گا۔ اور جو آپ نے دیگر تنظیم کا نام لیا ہے، میرا جو موقف ہے، میں تو تاج الشریعہ کے ہر موقف سے اتفاق رکھتا ہوں، لیکن میرا کام، میں جس لیول پہ کام کر رہا ہوں، میں سب سے زیادہ محنت اعلیٰ حضرت سے حسد کرنے والوں کے خلاف کام کر رہا ہوں، جو اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء سے دور کرتے ہیں، ایسے شیطانوں سے میرا مقابلہ ہے۔ کچھ مخالفت زبان سے، قلم سے ہوتی، کچھ مخالفت عمل سے ہوتی ہے۔ اگر تو عمل مخالف نہ ہوتے تو تاج شریعہ یہ کیسے کہہ دیتے کہ دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی مبلغ اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ ہونا الگ بات ہے۔ مبلغ کون ہے؟ نہیں، جیسے بہت سی مبلغ جو کتابوں اعلیٰ میں حضرت، اپنی مسلک مرضی اعلیٰ سے حضرت کی جو چینجنگ کر تبلیغ دینا۔ کرے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کرے، وہ مبلغ ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم رد نہیں کریں گے تو مبلغ نہیں رہا، لیکن سنی ہے،
सुन्नी है। और इनका क्या हुक्म है सकलैनियों का? ये सुन्नी भी नहीं है, ये सकलैनी सुन्नी भी नहीं है, इसलिए तो हम तो इनका इनको रद्द कर किस रहे हैं। जुमरे तो ये हुक्म लगेगा इन पर, फिर हुक्म ये लगाने वाला बदअकीदा कोई क्यों गुमराह है। नहीं है? तो बदअकीदा गुमराह भी तो कोई लिखे हम में से, किसने लिखा है? आज तक बदअकीदा तो किसी ने गुमराह लिखा नहीं है। इसलिए है कि ये आला हजरत से नफरत करते हैं, ये तो साबित है। इनके अगर कहीं भी मैं आला हजरत की बहुत तालीमात छोटी सी इनके। बात कहना मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ हाँ कि एक मिसाल के तौर पे अब एक सवाल रख दें दारुस्तान में, कहीं भी बिलखुसूस बरेली शरीफ में रख दें, मंदिर इस्लाम में, अल्लाह माकूल साहब के पास या किसी के पास, उसमें अगर हम लफ्जी तौर पर तहरीरी तौर पर लिख ले लें कि सकलैनी जो है गुमराह बदमज़हब है, तो क्या कोई बचेगा उनको बाइकाट ना करे? हम दरमियान में क्यों हैं? बैकआउट करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े तो ये उलमा दरगाह से फतवा आना चाहिए ना, दरगाह से फतवा। दरगाह वालों ने फतवा नहीं दिया आज तक, देखिए तो रद्द। दरगाह अभी दरगाह है ना, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट, दीनी जी 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 इस्लामी सुप्रीम कोर्ट हमारे दरगाह आला हजरत के दारुल इफ्ता है ना। जी जी पहले हर मस्जिद में उलमा, ये जो पहले तो सिविल कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। जी लोकल कोर्ट में पहले हमारे उलमा बोलते रहे, हमारे उलमा बोले आवाम की जहन साजी करे। जब आवाम की जहन साजी होगी, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले नहीं आता। पहले हमारे जज जो हर मस्जिद में हमारे उलमा बैठे हैं, ये हमारे हर एक मौलाना जज है, समझे? आप ये बात समझिए, पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट की एक अहमियत है। हमारे इस्लामी अदालत के सुप्रीम कोर्ट हमारे बरेली शरीफ है, जी, मैं इसलिए समझ रहा हर हूँ, आपकी उलमा। मिसाल भी मैं समझ रहा हूँ, जो मिसाल आप देना चाह रहे हैं हाँ मिसाल भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब सीधा साधा यही है कि देखो, बाइकाट के एतबार से हम आपको बताएं, जो हम सुन्नी हनफी रजवी लोग हैं, इन लोगों से ना तो किसी तरह का ताल्लुक रखते, न कि जैसे इनकी लड़कियों में लड़कों में रिश्ता वगैरह सब बंद है, ये आपस में ही कर रहे हैं, मदारी हो चाहे सकलैनी हो, ये हाँ आपस ही में कर रहे हैं, कोई रजवी इनसे नहीं कर रहा है। बाई चांस कोई भोला भाला घुस जाए, बात अलग है, पहले सब होते थे। मेरा हाँ गांव जो है, मेरे गांव से मियाँ हुजूर कहा जाता है सकलैन मियाँ को, तो पूरा गांव जाता था, मतलब हाँ कोई दूध लेके जा रहा है, कोई चावल लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, तो यहाँ तक कि मेरी अम्मी खुद जाती थी। लेकिन जब से ये खरपचार पैदा हुआ, पूरे गांव ने बाइकाट कर रखा है। तो बाइकाट तो मुकम्मल है, हमेशा से है, जब से ये फितना फैला तब से है, और समाजी तौर पर बाइकाट है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया वाला बाइकाट है, हद कुफ्र तक वाला बाइकाट है, या तो उस तरह का फतवा लगवा लो, हुक्म लगा लो, कोई उलमा ही लगा दे, लॉयर कोड, सिविल कोड नहीं, वो लॉयर कोड होगा। सिविल हाँ कोड तो हाई कोर्ट भी होता है, लॉयर कोड होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो लॉयर कोड हमने उलमा को माना, तो कम से कम उलमा तो कोई लिख दे कि बदमज़हब हैं, गुमराह हैं, तो कोई वो एक तो हुक्म तो लग जाए, उसके बाद हम रद्द करें तो ठीक है। हुक्म कोई लगाने को तैयार नहीं है, रद्द के लिए हम बहुत आगे निकल मैंने रहे हैं। तो आपको पहले बहुत सारे ऑडियो आप सुने होंगे, उसमें मैंने बताया कि हमारे उलमा हर जगह, जो इस इलाके के उलमा है जहाँ सकलैन के नाम से वाकिफ है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और हल्द्वानी। ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में लोग थोड़ा जानते हैं मुसलमान, है ना। तो यहाँ पर ये बड़े बड़े गुंडे पाल रखे हैं, गुंडों की टोली है। और जैसा मैं मुकाबला कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश में जाकर, मैं आंध्र प्रदेश में जाकर सकलैनी शैतानों के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो वहां तक बंबई से ये लोग गुंडे भेजे, बंबई से कार लेकर आए, बजरंग दल आरएसएस को साथ में लेके आए मुझे उठा के ले जाने के लिए। तो वहां के नेता लोगों ने कहा कि अभी हंगामा, इलेक्शन का मौसम है, आप ज्यादा हंगामा नहीं करना, सिर्फ वीडियो डिलीट करके वापस चले जाओ। फिर भी बहुत हंगामा किया, मुझे इसी तरह चंदा लेता है बोल के बदनाम करने की कोशिश किया। तो मैंने कहा कि चंदे का सबूत पेश करो कि मेरा कोई भी फ्रॉड आपके पास मौजूद हो, उसका सबूत हो तो पेश करो। फिर वो लाजवाब हो गया, फिर बोले वीडियो डिलीट करो। फिर जबरदस्ती जो है वहाँ के सारे लोग, 200-300 लोग जुड़ गए थे, अहले हदीस वाले भी इनके साथ जुड़ गए थे, सकलैनियों के साथ। तो देवबंदी, अहले हदीस, आरएसएस, बजरंग दल, सकलैनी, हर दुश्मन इकट्ठा होकर मेरे साथ आए थे आंध्र प्रदेश में हंगामा करने के लिए। तो यहाँ पर तो इनकी जोर, इनकी ताकत ज्यादा है। यहाँ तो
ये लोग सारे इकट्ठा होकर उस आलिम के पीछे टूट पड़ेंगे। और हमारे लोग पहले एकजुट होना चाहिए, हमारे उलमा को नहीं, मजबूत मैं करना आपकी चाहिए। हिम्मत को दाद देता हूँ, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत अता तो फरमाए। इसलिए और हमारे ये उलमा यहाँ मुजाहिदाना के, फन बड़ा पसंद आया मुझे, ऐसा नहीं है, लेकिन सुनिए, मुझे ये दिख रहा है आप अकेले दिख रहे हो हर जगह पे, आप, सपोर्ट मैं क्यों ये नहीं बता किसी रहा का हूँ आपको? जी, सुनिए मेरे भाई, बात यह है कि यहाँ के कोई भी आलिम बोलने लगे, पहले उनके पीछे हमारे नौजवान कमेटी मजबूती से, हमारे नौजवान एकजुट हो जाए, हमारे आलिम के साथ खड़े हो जाए। इज्जत वही चाहते हो तो हक पे आ जाओ ना, हक पे आ जाओ। वही वगैरह, जैसे मदारी, अभी आपने नाम लिया, मदारी में हाँ, कमेंट मदारी भी देखो। जलील उनके अंदर। देखिए अभी कारी अहमद हसन जो ये मौलाई फिरका का ये बहुत बड़ा सरगना है, कितना जलील हुआ। तो जलील उसको करा कौन बोले बढ़िया, जलील हो जाओ बोल के? जलील हो, इज्जत के मुफ्ती साथ अख्तर रहता था। साहब ने वो भिगो भिगो के ठोका उसे बढ़िया तरीके से। हाँ, तो ऐसा ही जलील होने के लिए ये लोग मदारी बने, साकलैनी बने। इज्जत इन्हें, ये लोग इज्जत चाहते हैं, इज्जत इनको प्यारा होता, तो फिर ये लोग मसले के आला हजरत छोड़ते ही नहीं थे, हक के पाबंद होते, हक बात को मानते, उलमाए हक का साथ देते। तो मैं आपसे ये, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये साकलैनी शैतान लोग हमारे उलमा की यहाँ बहुत ज्यादा हमारे उलमा को सता रखा है, परेशान कर रखा है। कोई किसी आलिम को हक बोलने नहीं दे रहा है। अब आलिम कब हक बोलेंगे? जब आवाम का साथ होगा। और हमारे आवाम उलमा की अहमियत नहीं दे रहे, उलमा की कदर नहीं कर रहे, इसलिए सबको अल्लाह के पास सब पकड़े जाएंगे। पहले तो उलमा बिल्कुल पकड़े बिल्कुल। जाएंगे, उसके साथ साथ ये आवाम भी पकड़े जाएंगे कि तुम क्यों साथ नहीं दिया। अब हम सकलैनियों के खिलाफ बोलना भी फर्ज है, लेकिन हम फर्ज कब अदा करेंगे? जब हम उतनी ताकत में आएंगे। जैसा हदीस में है कि बुराई को कोई रोके, अगर ताकत है तो हाथ से रोके, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जुबान से रोके, जुबान से रोकने की ताकत नहीं है दिल में बुरा जाने। 99% उलमा बुराई, इस बुराई को दिल से बुरा जानते हैं, इसलिए सकलैन मियाँ के साथ कोई आलिम साथ नहीं है। और दो चार चापलूस मौलवी पैसा खाकर, रिश्वत लेकर इन मौलवियों ने सकलैनियों को सपोर्ट किया, कर रहे हैं। बाकी 99% उलमा इनके साथ नहीं है। लेकिन बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको रद्द की जगह, मतलब जो आप कर रहे हो उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए तो दुआ अल्लाह ताला और आपको हिम्मत दे, लेकिन मेरे जो कुछ गांव ऐसे देखे हुए हैं, खुद बजाते खुद मैंने देखे हैं वो गांव, जो जिनके साथ जमीनी मेहनत करी जाए तो ये सब रद्द रद्द वगैरह की जरूरत ही नहीं, वो कब से बदल जाएंगे उन्हें पता भी नहीं लगेगा। हाँ, मेरा हमारे मानना उलमा ये है। मेहनत करें, आला हजरत की मेहनत तालीमात कोई को नहीं आम कर करें, रहा, खुद ब खुद सकलैनी मेहनत सकलैनी कोई गारत नहीं हो कर रहा जाएंगे। है। रद्द करने से मुझे तो भला दिख नहीं रहा है सिवाय झगड़ों के, और उन्हीं में उनमें और मजबूती आ रही है। नहीं, वैदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा जो आया है, जाहिलों को आप बता भी रहे, जाहिल भी उन्हीं से बहस भी कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा नहीं, समझ में बहस नहीं तो आ रहा। नहीं कर रहे हैं, सकलैनियों से बहस करने नहीं बोल रहा हूँ। बहस करने लायक है कौन? क्या है उनके वही मैं अंदर? कह रहा हूँ। अभी आज तक जितने सकलैनी मुझे कॉल किया है, सिर्फ हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत का इनकार, वो लोग अली की अफजलियत साबित कर रहे हैं, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई दलील नहीं, लाजवाब हो जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी कर रहा है, अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार कर रहा है, उसकी भी दलील नहीं है इनके पास। फिर आला हजरत के शान में गुस्ताखी कर रहा है, आला हजरत के खिलाफ भी बोलने के लिए इनके पास कोई दलील नहीं है। जो देवबंदियों ने एतराज किया वही एतराज देवबंदियों से लेकर ये कर रहे हैं। सुनिए, इनमें हिम्मत है ही नहीं कि आला हज़रत के आप खिलाफ बोल सुनिए, रहे हैं हज़रत। आला हजरत के खिलाफ एतराज कौन सी एतराज कर रहा है? जो एतराज सदियों से 100 साल से देवबंदी लोग कर रहे हैं, वही एतराज ये सकलैनी लोग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो इसका देवबंदियों का मतलब हमनामा साबित हो रहा है। इसका मतलब मेरी समझ में ये आ रहा है कि इनको देवबंदी कैच कर रहे हैं हमारे आपके झगड़े की देवबंदी वजह से। इनको चला रहा है, क्योंकि कैच कोई कर ना रहे हैं, कोई कैच आलिम, हमारी देखो हमारी कोताहियों की वजह से इनको वो लोग कैच कर रहे हैं, और ये वो लोग आने वाले कैच कर टाइम में रहा है, वही वो ना लोग बन जाए तो। इस्तेमाल कर रहा है। मसलक के आला बिल्कुल। हजरत के खिलाफ देवबंदी इनको इस्तेमाल कर रहा है, अहले हदीस इनको इस्तेमाल कर रहा है, शिया और इनको वो थोड़े इस्तेमाल से कर रहा टुकड़े है। और डाल देंगे ना, रियाल और डाल देंगे तो ये मुकम्मल वही बन जाएंगे। अभी तो ये आप बनने थोड़ा सा दो, वो बनेंगे तो जो भोले भाले आवाम है वो वापस आएंगे। डायरेक्ट खुलकर ऐलान करे देवबंदी उलमा के साथ होने का। अभी हुआ भी, ये गाजी मियाँ सकलैन के गद्दी नशीन
पंजाब में जाकर वहाँ एक मौलवी उस्मान है, मौलवी उस्मान से मिलने गया। तो मौलवी उस्मान बिठा के देवबंदी उलमा की और इस्माइल देहलवी की, रशीद अहमद गंगोही की तारीफ कर रहा है और गाजी मियाँ बैठकर सुन सुन के दाद दे रहा है। तो जब यही बात खुलकर सामने आ जाएगी कि देवबंदियों की तारीफ हो रही है, गाजी मियाँ दाद दे रहे हैं और गाजी मियाँ तारीफें सुनकर खामोशी से सुन के आ रहे हैं, गाजी मियाँ को इतनी हिम्मत नहीं हुई। इस्माइल देहलवी ने लिखा है, नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है। ऐसे लिखने वाले खबीस की तुम तारीफ कर रहे हो, तुम नमाज कैसे पढ़ते हो, नमाज में नबी का ख्याल के बगैर नमाज तुम्हारी कैसे हो रही है। गाजी मियाँ की इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक नंबर का जाहिल है गाजी मियाँ को इस्माइल देहलवी की किताब से कोई मतलब नहीं, इस्माइल देहलवी की किताब का उनको मालूम नहीं गाजी मियाँ को। तो असल बात ये है, लास्ट जो बात है वो ये है कि ये देवबंदी, अहले हदीस, शिया, ये सब फिरके सकलैनियों को इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है हमारी कमियों से। हमारी कमी तो है ही, हमारी कमी, हम कमजोर है, हमारे माली एतबार से भी कमी है, हमारे उलमा की, हमारे आवाम की बेदारी में कमी है, जिसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। में कमी है, हर तबके में कमी है, हर तबके में। और बस दौर यही चल रहा है कि अपनी कमी को सुधारने में लगे रहो। जो है क्या नाम, वो दौर है जो ईमान पर चलना, हाथ में आग का अंगारा लेकर चलने के बराबर रहेगा, वही दौर चल रहा है। चलिए, मुझे दुआ में याद रखिए, आइएगा तो मुलाकात कीजिए, बैठ के गुफ्तगू करते हैं आपसे, देखते हैं इंशाअल्लाह। जी जी, अच्छा ठीक है, दुआ में याद रखिए।